Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. So guys, today we are going to discuss in detail the poem, the mock epic, The Rape of the Lock. So the Rape of the Lock begins with a passage outlining the subject of the poem कि जिस मौजू पे वो लिखी गई है and invoking the aid of the muse. तो आपको पता होगा कि जो पॉम्स लिखी जाती थी या ग्रीक मैथोलॉजीज वगैरह लिखी गई हैं तो उसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले जो पोइट होता है he asks from muse to help him to write the poem in a very good way. They just pray, the poets, they just pray to muse to help the people or to help the poet in writing the poem. So this was a mock epic, and for example, if you um, read ever read some of the other poems, the epics in the previous semester, you came to know that in every poem almost, for example, in Paradise Lost, in Dr. Faustus, because they are written in the form of poetry, in the form of a poem which is epic one. तो उसमें भी हर एक में आपको ये चीज़ नज़र आती है कि जो पोइट होता है वो उससे पहले म्यूज से जो है वो he asks for help. Then the sun, Sol, appears to initiate leisurely morning routines of a wealthy household. Lap dogs shake themselves up. उन्होंने सिनेरियो बताया हुआ है जहाँ से स्टार्ट हुआ है. Bells begin to ring, and although it is already noon, Belinda still sleeps. अब नून हो चुकी है लेकिन वही उन्होंने सही एक आपको ट्रू रिफ्लेक्शन दिखाया हुआ है जो वेल्दी क्लास का कि the people of wealthy class, they are not cared about whether it's morning, whether it's you know what, noon or afternoon. They just do the things but the way they like. So again over here we see that Belinda, she's still sleeping. She has been dreaming, and she was dreaming, and we learned that the dream has been sent by her guardian self. तो जो उसको गार्ड करती है वो एक सेल्फ है, एक स्पिरिट है जिसका नाम है एरियल. वो उसकी तरफ से उसको ख्वाब आता है. The dream is of a handsome youth, खूबसूरत जवानी का ड्रीम है, who tells her that she is protected by unnumbered spirits. There are a lot more spirits that are around her and they are protecting Belinda. Unnumbered spirits कौन सी हैं? An army of supernatural beings. Supernatural beings हैं वो, इंसान नहीं है, उनकी आर्मी नहीं है बल्कि spirits की आर्मी है. So who once lived on earth as a human woman. और ये कभी according to the you know what, the rape of the lock, पहले ये जो स्पिरिट्स थी ये ह्यूमन वुमन हुआ करती थी अर्थ में. अब जो है वो ये स्पिरिट्स बन गई हुई हैं and they just look after Belinda and the beauty of Belinda also. So the youth explains that they are the invisible guardians of women's chastity. वो उसकी हिफाजत करती हैं. Although the credit is usually mistaken given to honor, क्रेडिट ज़्यादातर इसको दिया जाता है कि it was not actually the protection of chastity, but rather it's the protection of honor. ठीक है, उस पे है वो जी. Rather than to their divine stewardship, तो उनके सिर्फ डिवाइन इस चीज को लेकर नहीं है बल्कि उसकी इज्जत की हिफाजत करती हैं वो सुपरनेचुरल बीइंग्स. अच्छा जी. Then what happens
Of these spirits, one particular group, उन spirits में से एक जो particular group है, जो selves हैं, who dwell in the air, जो कि air में रहती हैं, serve as Belinda's personal guardians. ठीक है, वो उसकी बेलिंडा की पर्सनल गार्डियंस हैं. दे आर डिवोटेड, वो बहुत ज़्यादा लगन से अपना काम करती हैं जी. लवर लाइक हैं टू एनी वुमन, हर औरत के दैट रिजेक्ट्स मैनकाइंड, जो इंसानियत को रिजेक्ट कर दे. एंड दे अंडरस्टैंड एंड डिवोट द वैनिटीज ऑफ एन एलिगेंट एंड फ्रिवलस लेडी लाइक बेलिंडा. और ये अंडरस्टैंड करती हैं और रिवार्ड करती हैं जो वैनिटीज हैं, जो प्राउड है, एक एलिगेंट और एक सिली सॉर्ट ऑफ लेडी की, जैसे बेलिंडा है. एरियल है, जो एक सेल्फ है, गार्डियन सेल्फ है बेलिंडा की. द चीफ ऑफ ऑल बेलिंडास पकिश प्रोटेक्टर्स. तो उसमें ये सबसे ज्यादा जो बेलिंडा की जो सेल्फ बेलिंडा को टेक केयर करती हैं, गार्ड करती हैं, उसमें जो चीफ है वो एरियल है. warns her, वो उसको warn करती है in this dream में, that some dread event is going to befall her that day, कि आज के दिन ना बहुत कुछ खौफनाक सी चीज होने वाली है बेलिंडा के साथ. Though he can tell her nothing more specific than that, इससे ज्यादा उसने उसको कुछ नहीं बताया था. She should beware of man, उसको उससे जो है वो मर्दों से, लड़कों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए था. जब उसको प्रोफेसी दे दी गई कि कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है. Then Belinda awakes, Belinda उठ जाती है to the licking tongue of her lapdog. वो उसकी जो जो उसका लैपडॉग होता है, जो उसने रखा होता है, वो लिक कर रहा होता है उसकी टंग, अपनी जो टंग है उसके साथ लिक कर रहा होता है. वही जिस तरह से पेट्स जब आपने रखे होते हैं, तो द वे दे ट्रीट यू. Shock upon the delivery of a billet dogs or love letter, she forgets all about the dream. लव लेटर उसके मतलब जो उसको चीजें मिलती हैं तो उस पे ना वो भूल जाती है अपने ख्वाब के बारे में, इग्नोर कर देती है. She then proceeds to her dressing table, अपनी ड्रेसिंग टेबल पे जाती है. अच्छा, आपने यहाँ पे देखना है गर्ल्स कि ये सारे का सारा जो इसमें उन्होंने बयान किया हुआ है, वो जी ड्रेसिंग टेबल के पास जा रही है, तैयार हो रही है, उसको पिंज लग रही हैं, उसको बकायदा एक जो मशीनरी है, सुपर नेचुरल मशीनरी, उसको तैयार कर रही है. तो आप देखते हैं यहाँ पे कि कैसे उसकी ब्यूटी को मजीद वो निखार रहे होते हैं. ओके, एंड गोज थ्रू एन इलेबोरेट रिचुअल ऑफ ड्रेसिंग, वो सब कुछ करती है, in which her own image in the mirror is described as a heavenly image of goddess. और जहाँ पे उसका खुद का जो मिरर में इमेज होता है, वो एक गॉडेस की तरह उसको दिखाया जा रहा होता है. क्यों? क्योंकि she is just sitting there, she is pretty, she is so beautiful, and the supernatural elements, the supernatural machinery is coming and treating her in a most good way, and giving her the 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 services, and they are preparing Belinda to go out. Now, the serfs unseen, नजर नहीं आती, assist their charge as she prepares herself for the day's activity. वो नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो सुपर नेचुरल मशीनरी है ना, वो बस पता चल रहा है जिसको तैयार कर रहे हैं, सब कुछ है. अच्छा जी, so the opening of the poem established its most mock heroic style है जी इसका. mock heroic again के क्योंकि मॉक एपिक है, तो मॉक हेरोइक इसका स्टाइल है जी, जो कि मॉक करता है, जो कि क्रिएट करता है लाफ्टर and all. So Pope introduces the conventional epic subject of love and war and includes an invocation to the muse
उसे इन्वॉक करता है एंड डेडिकेशन टू द मैन हिस्टोरिकल जॉन कैरल जो है वो कमीशन द पॉम जिसकी वजह से उसने पॉम लिखी थी. Yet the tone already indicates, tone हमें बताती है that the high seriousness of these traditional topics has suffered a diminishment. तो हमने उसकी जो पॉम की जो टोन होती है उसका जो उसका ट्रेडिशनल सा टॉपिक है उसको इतना इतना मतलब एक आम सी एक छोटी सी बात है और उसको इतना बड़ा करके इतना सीरियस करके दिखाया हुआ. So the second line of the poem, the second line confirms in explicit terms what the first line already suggests. So the amorous causes the poem describes are not comparable to the grand love of Greek heroes, but rather represent a trivialized version of that emotion. अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इडिपस रेक्स जो है वो भी लॉन्ग नैरेटिव पॉम की सॉर्ट ऑफ वे में लिखा गया. डॉक्टर फॉस्टर्स भी, पैराडाइज लॉस्ट भी. तो वो जब लिखे जाते थे तो जब वो म्यूज से हेल्प मांग रहे होते थे तो उनका सब्जेक्ट भी वैसा होता था कि कुछ इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने जा रही हैं तो वो जो उसमें म्यूज से वर्ड जो है वो हेल्प मांगता है. ठीक है. अब ये जो छोटा सा सीरियस सा सब्जेक्ट था, छोटा सा सीरियस सा एक मतलब मजाक बनाया हुआ है ना उस पे कि लॉक काट दिया तो उसके ऊपर जो दो फैमिलीज की परमानेंट लड़ाई छिड़ गई. तो ये चीजें उन्होंने जिस तरह से रिप्रेजेंट की हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती थी कि वो इस तरह से म्यूज़ से हेल्प मांग रहे हैं. लेकिन ये इन चीज़ों को भी दरअसल उसने बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाया हुआ. एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा है. दैट इज टू क्रिएट लाफ्टर. अच्छा जी. सो द कॉन्टेस्ट Bob alludes to will prove to be mighty only in an ironic scene. तो आयरॉनिक सीन में बहुत ज्यादा बड़ा इसको दिखाया हुआ है. दे आर कार्ड गेम्स एंड flirtatious sort of the things. Note the great battles of epic tradition. तो बड़ी बड़ी जंगें नहीं हो रही जिसपे इस तरह से इनको जरूरत पड़े. बेलिंडा इज नॉट लाइक हेलन ऑफ ट्रॉय. वो हेलन ऑफ ट्रॉय की तरह भी नहीं है. द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships, जिसकी वजह से 1,000 ships जो है वो उन्होंने लॉन्च किए. ठीक है जी. बट रादर अ फेस ऑल्सो ब्यूटिफुल. ऐसा फेस है जो कि बहुत खूबसूरत है. प्रॉम्स अ लॉट ऑफ फॉपिश नॉनसेंस. लेकिन it is the details of the poetry, the mock epic, they are just full of nonsensical sort of the things. Okay, so the first two verse paragraphs emphasize the comic inappropriateness of the epic style. उस मतलब inappropriateness है उसमें. And corresponding mindset to the subject at hand. So Pop achieves the discrepancy at the level of the line and half line. तो रीडर जब उसको पढ़ता है तो वो देखता है कि देर इज सम इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द टू साइड्स ऑफ हिज पैरेलल फॉर्मुलेशंस. मतलब उसको इतना बड़ा करके दिखाया हुआ है जबकि अंदर बात छोटी सी है जिसको उसने रिप्रेजेंट करना है. क्यों? क्योंकि दिस इज द मोक एपिक. ठीक है. अच्छा जब हम यहाँ पे जंप करेंगे जी तो यहाँ पे with Belinda's dream, Pope introduces the machinery of the poem. Poem में उसने मशीनरी को इंट्रोड्यूस करवाया. The supernatural powers हैं that influence the action from Belinda the scenes. ठीक है. और वो तैयार कर रही हैं उसको. Here the spirits that watch over Belinda are meant to mimic the gods of the Greek and Roman traditions. उनको इसने मिमिक किया है, उसको कॉपी किया है इसने. Who are sometimes benevolent and sometimes malicious, but always intimately involved in earthly events. वो earthly जो events होते हैं वहाँ पे help कर रहे होते हैं. ठीक है. So the scheme also makes use of other incidents, hierarchies and systems of orders. तो यहाँ पे क्या होता है कि Ariel explains that woman spirits when they die, जब औरतें जब मर जाती हैं अर्थ पे, return to the first elements. तो वो क्या बन जाती हैं?
स्पिरिट्स बन जाती हैं। ईच फीमेल पर्सनालिटी टाइप, दीज टाइप्स correspond to the four humors, is converted into a particular kind of spirit. तो उसको वो जब मरने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइप की स्पिरिट बन जाती है। कैसे? जिनोम्स बन जाती हैं, सेल्फ्स बन जाती हैं, सिलेमेंडर्स बन जाती हैं और निम्स बन जाती हैं। ये 4 टाइप्स की जो है वो इसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि वो स्पिरिट्स बन जाती है। ये सारी स्पिरिट्स हैं, ठीक है। इन टर्न आर एसोसिएटेड विद द 4 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, और जो कि लिंक्ड है 4 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के साथ। ऑफ अर्थ है, एयर है, फायर है एंड वाटर है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो लिंक्ड है एक एक से। एक लिंक्ड है अर्थ के साथ, तो डीप अंडरग्राउंड वर्ल्ड में कौन जाता है? जिनोम। तो जिनोम अर्थ के साथ है, सेल्फ्स एयर के साथ हैं, फायर सिलेंडर के साथ है, और जो निम्स हैं वो वाटर के साथ है ये सारी स्पिरिट्स हैं। फिर भी आई गिव यू द टास्क, मैं आपको टास्क दे रही हूँ एज अ लिटिल असाइनमेंट। आपने देख के आना है कि जो जिनोम, सेल्फ, सेलेमेंडर्स और निम्स, इसमें कौन सा किस चीज कौन सी स्पिरिट का रोल प्ले कर रहा है। अर्थ वाली कौन सी है, एयर वाली कौन सी है, वाटर वाली कौन सी है और फायर वाली कौन सी है। So the Aries cells are those who in their lifetime were light coquettes. They have a particular concern for Belinda because she is of this type, and this will be the aspect of feminine sort of the nature with which the poem is most concerned. तो इसमें बहुत ज्यादा जो किरदार है किसका? एरी सेल्फ्स का, जो बेलिंडा को तैयार कर रही होती हैं वहां पे एनोई। ठीक है जी। अब हम जो है वो बस इतना ही, और हम कंटिन्यू करेंगे पिछले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके साथ। अच्छा जी, हमने कैरेक्टर्स उनका एनालिसिस देखना था, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे जी रेप ऑफ द लॉक का जो कैंटो 1 है। अच्छा जी, तो बेलिंडा जो है वो एक वेन अपर क्लास की वुमन है। वो इज ऑलवेज सीन एज द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। हर सोसाइटी पुट्स हर ऑन अ हाई पेडेस्टल, ऑलवेज गिविंग हर प्रेज व्हेन पॉसिबल। हमेशा सब उसकी तारीफ करते हैं, उसको उन्होंने बहुत हाई जो बनाया हुआ है, ठीक है, just because of her beauty. So the Baron steals a curl of Belinda's hair, वो चुरा लेता है when given the scissors by Belinda's friend Clarissa. अब ये भी जो क्लैरिसा होती है बेलिंडा की फ्रेंड होती है, और ये बैरन को सीजर्स देती है कि इसका लॉक काट दो। When the Baron cuts the curl from her head, जब काट देता है तो फिर क्या होता है जी? The typically calm collective Belinda, जो हमेशा काम रहती है, flies into a horrible rage. उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। She asks at once for her hair to be returned to her. पहले तो वो कहती है कि वो वापस उसका कर दिया जाए, but when the Baron cannot find the curl, जब उसको कर्ल नहीं मिलता, it is said that it traveled up into the stars, कि वो जी stars में चला गया and is now a you know what, it is the thing that is for all the admiration, or for all the things. So it looks as though Pope uses this mock epic work to represent the fascination that society has of the members of the upper class. वो जिस तरह हमारी सोसाइटी में होता है ना, जो लोग एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, लोग उनको बड़ा प्रेज करते हैं, एडमायर करते हैं, फिर वो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। तो वो खूबसूरत भी है, और वो बहुत ज़्यादा जो वेल्दी क्लास से भी बिलोंग करती है। तो नाउ द थिंग इज लाइक दैट शी इज हैविंग ईच एंड एवरीथिंग दैट पीपल डिमांड और अ गर्ल डिमांड्स, ठीक है। तो
यहाँ पे हर कोई जो है वो उसको प्रेज करता है। अब जो उसका लॉक कट गया है, उसने वापस मांगा तो उसको नहीं मिला, क्योंकि मिला नहीं बैरन को लॉक काटने के बाद। उनकी जंग छिड़ जाती है, उसके बाद में मिलता नहीं है। अच्छा जी, तो बेलिंडाज ब्यूटी, जो बेलिंडा की खूबसूरती है, उसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है, सब लोग उसको एडमायर करते हैं। एंड मैनी वर जेलस। अब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एडमायर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है वो जेलस भी हैं, जैसे बैरन और क्लैरिसा। ये दोनों जो है वो उससे जेलस भी हैं। So the tension between the people in the upper class is illustrated by these characters, and characters से हमें पता चलता है कि upper class जो है वो किस तरह की उनकी tensions थी, and the fights to steal another person's power, और दूसरे बंदे की power को कैसे snatch करना है, they are just struggling hard for that. Now Pope compares the trivial event in this poem to the event in the epic poems by using satire. तो वो एपिक फॉर्म में सटायर का इस्तेमाल करता है, और इस फॉर्म को उसने मोक एपिक लिखी है, जो कि बिल्कुल एक ट्रिवियल सा इवेंट है, जहाँ पे जिसने उसका बस उसका लॉक काट दिया और वो फिर एक मसला ही बन गया। ठीक है जी। सो द इवेंट दैट अकर्स इन दिस फॉर्म शो हाउ द सोसाइटी being described has lost all capability of determining which problems are to be treated seriously and which should not. तो उस चीज को जिसको सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको जो अपर क्लास है और अपर क्लास के जो लोग हैं उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। और वो चीज जिसके ऊपर सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है, यू शुड बी काम। और ठीक है, छोटी बात हुई कि उसने लॉक काट दिया, आप उसको आपने थोड़ी देर के लिए सीरियस लिया, देन इट वाज ओवर, तो उसके ऊपर जंगें छिड़ रही हैं जी, बकायदा जंग हो रही है उसके ऊपर। तो उन्होंने एक बहुत ट्रिवियल से इवेंट को बहुत बड़ा करके, एग्जेजरेशन बहुत ज्यादा है, और आपको पता है वेयर देयर इज एग्जेजरेशन, ठीक है, तो वहां पे आपको जो मॉकिंग सॉर्ट ऑफ द थिंग है, दैट क्रिएट्स लाफ्टर। ठीक है। अच्छा जी, so the baron is a representation of Lord Peter, a whom Pope know or knew from his social circle, जिसको he was one of the from one of the family of John Carroll, उसके relatives में से था, और जॉन कैरल ने ही अर्ज किया था इसको पोप को कि वो इसको लिखे। क्लैरिसा, क्लैरिसा कौन थी जी? क्लैरिसा इज बेलिंडा's jealous friend। अब आपने यहाँ पे एक और चीज देखी होगी कि वो उसकी फ्रेंड थी बेलिंडा की, लेकिन what she did कि she was so much jealous and who wishes to hurt Belinda by stealing a lock of her hair। वैसे तो अपेरेंटली बेलिंडा की दोस्त बनी हुई थी, लेकिन वो उसको हर्ट करना चाहती थी, और उसको पता था कि उसकी खूबसूरती की बहुत बड़ी वजह जो है वो ये इसका बालों का लॉक है, कि इसका हेयर का लॉक है, जो कि उसकी खूबसूरती की बहुत बड़ी वजह है। तो शी वांटेड टू स्टील दैट, शी वांटेड टू कट दैट, फॉर व्हाट, व्हाई, जस्ट टू गिव पेन बेलिंडा, बेलिंडा को तकलीफ देने के लिए। Following the mock epic trend of the poem, Clarissa believes that cutting a small curl of Belinda's hair will be devastating, although truthfully many worse things could happen. चाहे जितनी बड़ी चीजें हो जाएं, लेकिन सिर्फ अगर उसका लॉक काट दिया जाए बेलिंडा का, तो she knew कि she believes rather, she knew नहीं, she rather believes कि इस पे बहुत ज्यादा जो डिस्ट्रॉइंग सॉर्ट ऑफ द सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और इसी के लिए जो क्लारेसा थी, उसने बैरन को सीजर्स दी कि वो उसके लॉक को काट दे। अच्छा जी, देन कम्स द अपर क्लास, जिसको उसने सटायर किया है पोप ने। तो पोप यूजेस द अपर क्लास फॉर द बेसिस ऑफ हिज पोम, उसके पोम के बेस अपर क्लास है जी। दे आर मॉक्ड, उनको मॉक किया गया है, बिकॉज पोप बिलीव्स दे डू नॉट केयर अबाउट सीरियस मैटर्स, उनको सीरियस मैटर से कोई कंसर्न नहीं है। have narrow-minded ideas, उनके narrow-minded से ideas about the world in which they live। अच्छा, आपको पता है कि जो elite class होती है, जो upper class होती है, उनके पास सब कुछ होता है, अच्छा रहना सहना, अच्छा खाना पीना, सारी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी हो रही होती है,
सब कुछ होता है, तो फिर दे जस्ट ऑलवेज स्पेंड टाइम इन गिविंग प्रेफरेंसेस टू देयर ब्यूटी, ठीक है, टू देयर कंफर्ट्स। तो उसकी उनकी इससे उनकी सोच बहुत लिमिटेड हो जाती है कि दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द ट्रिवियल थिंग्स, ठीक है, अबाउट देयर ब्यूटी, एंड डू नॉट possess the ability to look beyond trivialities। तो वो ट्रिवियलिटीज से आगे बढ़ते ही नहीं है, उसको देखते ही नहीं है। So the chaos that ensues when Belinda's lock is stolen serves to poke fun at the upper class। तो upper class के ऊपर जो है वो उन्होंने इसका मजाक बनाया हुआ है। Average people reading this poem, average people जो इस poem को पढ़ रहे हैं can see how ridiculous it is, कितना बेवकूफाना sort of the thing है, that they get so upset at the theft of a piece of hair and go to such lengths to retrieve it। इतना उसको वापस पाने के लिए इतनी मतलब इस हद तक चले जाते हैं और उनकी मतलब जंग बन गई है। एंड बिकॉज पॉप एग्जेजरेट्स द सिचुएशन सो मच, उसने सिचुएशन को एग्जेजरेट किया है। अपर क्लास के जो रीडर्स हैं रिकॉग्नाइज द मोकरी, उनको समझ आ रही होती है, एंड फील एम्बैरेस्ड, और वो इस चीज पे एम्बैरेस्ड हो रहे होते हैं दैट दे एक्ट इन सच अ मैनर, कि इस तरीके से उन्होंने एक्ट किया है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही बेटा कि जैसे जो जोफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग जब लिखा था, तो उस पे उसने इसलिए लिखा ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि किस तरह की चीज़ों में वो मसरूफ हैं, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, एंड हाउ रिडिकुलस द सिचुएशंस आर। मतलब वो एक जो फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है, एक रिलीजियस कैरेक्टर था चर्च से रिलेटेड, और वो बजाय इसके कि वो चर्च का पर्सन है और वो अपनी लाइफ कैसे गुजारे, तो वो कैसा था, तो उसको भी उसने मतलब सटायर नहीं बल्कि सटायर करके और ह्यूमर को यूज करके उसने उनको मॉक किया था जी। अच्छा जी, सो पॉप यूज द अपर क्लास प्राइमरली, उसको किया टू पिन पॉइंट देयर फ्लॉज, उनके फ्लॉज को पिन पॉइंट करने के लिए, टू देम थ्रू द यूज ऑफ सटायर और मोक एपिक यूज करके और सटायर यूज करके। सो अ पार्ट दैट इज मोस्ट हैवीली लेडन विद sarcasm is the ending in which Pope writes, when those fair suns shall set, as set they must, and all those tresses shall be laid in dust, this log the muse shall congregate to fame, and mid set the stars inscribe Belinda's name। तो यहाँ पे पॉप finishes the poem by claiming that the log will be immortalized, कि अब जो लॉक है जी वो immortal हो गया है, which is a ridiculous statement। लॉक ने क्या immortal होना है, ठीक है, एंड वन दैट इज क्वाइट क्लियरली सार्केस्टिक है जी, बहुत ज्यादा पॉइंट। पोप एक्चुअली writing this, he is actually pointing out he has exaggerated the trivial things so much that creates laughter। Pop's intent with this is to make one final mark on the upper class reader। He is hoping to shame them into correcting their behaviors and start caring about things beside beauty and status। So they are just concerned about their status and their beauty, क्योंकि उनकी जब सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी हो रही है, उनको सब कुछ मिल रहा है, तो दे जस्ट डू नॉट केयर अबाउट द अदर थिंग्स, ठीक है, और दे जस्ट इग्नोर देम। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसने इस पोम को फिनिश करता है, फिर वो इसमें ट्रिवियलिटीज का जिक्र है, उसमें उसने एम्फसाइज किया है the idea that people should not focus on trivial things such as the loss of piece of hair, but rather should search for the truly meaningful things in their lives। उनको उनकी लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है, उनको कुछ अच्छे काम करने चाहिए, they should do good, but what they are doing। He also asserts that being able to laugh at oneself and at life once in a while is a key ingredient in having a successful life। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्लैरिसा की स्टेटमेंट को किया है, but we will just stop over here। So this was the lecture all about related to that we are discussing in general the rape of the lock, and inshallah in the
coming lectures, we will discuss the literary terms in detail. I'm giving you the task to please search uh, on what is satire, and you are going to write a brief summary जो आपको पता चला है on the rape of the lock.